So in last class we have learnt about the poem. So here are the key points of the poem Romeo and Juliet. If you remember these points, that you can answer any of the question which is asked in your exam. And with that, I will give you one answer. That answer must be by hearted. Okay. So it is having the answer for all the questions which can be asked in your board examination. So let me finish first with the key points of the poem. First key point is the city of Verona. From this you can remember that this story is set up in the city of Verona, where we have seen the two families. So the next point, Romeo and Juliet lives in this city Verona. Who used to live? Romeo and Juliet. They were belongs to two noble families. Two noble families were there. The first family is Montagues and the second one is Capulets. Romeo belonged to Montagues and Juliet belongs to Capulet. These two families were rivals. They don't like each other. They were having the enmity with each other. So Capulets hoisted a grand supper. A party was there. Intense and passionate love. When Romeo attended the supper in disguise, he felt the intense love for Juliet, and Juliet felt intense love for Romeo. Romeo glorification of Juliet's beauty. After that, what happened? Romeo started to glorify Juliet's beauty, how she is. He started to glorify. Glorify means admire. Juliet's beauty surpasses the brightness of torches. He says that the torches which were burning in the hall were surpasses by the beauty of Juliet. A rich jewel, and he has compared to Juliet with a rich jewel in Ethiop's ear. Do you remember? Ethiopia's people's jewelry, the diamonds jewelry, earring he has compared. A rich jewel. She was like a rich jewel. Juliet is compared to snowy dove, and again he has compared her with a snowy dove. The dove and everybody was said as troop of crows. Romeo meets after the dance. After the dance, Romeo meets to Juliet. Juliet praises Romeo. Then Juliet started to praise Romeo. Romeo की तारीफ करने लगी. She started to praise. How? Praise Romeo. How she praised? Compares the day in night. She is comparing Romeo to the day in night. रात में दिन के जैसा है. कौन? Day in night. Who? Romeo. New snow on the raven's back, as well as she has compared him with the new snow. नई नई बर्फ जैसे पड़ती है किसके ऊपर? रेवेंस के ऊपर, रेवेंस के बैक के ऊपर. She wants Romeo to be little stars after her death. और वो चाहती है कि रोमियो को क्या कर दिया जाए? लिटिल स्टार्स में कन्वर्ट कर दिया जाए after the death, and he must decorate the face of heaven, and the entire world will fall in love with the night and stop worshipping to the garish sun. This was the feelings which Romeo felt for Juliet and Juliet felt for Romeo. Hope you have understood these key points, and let's go to the question answer part. Question, only one question I am giving, that will be sufficient for all your questions which will be asked in the examination. Might be it is 3 mark, 4 mark or 2 mark questions you will get from the center. Okay, how the answers you have to write we will discuss in next. In your board examination he might ask you the question like, how does Romeo glorify Juliet's beauty? रोमियो ने जूलियट की ब्यूटी को कैसे ग्लोरीफाई किया? ग्लोरीफाई करना, एडमायर करना, कैसे उसकी तारीफ की है, उसकी ब्यूटी को कैसे वो
वो एक्सप्लेन किया हुआ है। बेटा क्या पूछेगा, रोमियो ने जूलियट को कैसे ग्लोरीफाई किया है या जूलियट ने रोमियो के बारे में क्या बोला है, ये दो ही क्वेश्चन पूछ सकता है। इन दोनों के लिए कॉमन आंसर है यहाँ पे। जस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो दोनों भी आप एक आंसर याद करके दोनों के भी क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन के लिए आंसर लिख पाएंगे। अब वो कैसे सर, देखिए पहला वाला जो पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कि क्या है इस स्टोरी के अंदर, इस स्टोरी में क्या है, इस पोएम में है क्या आखिर। तो लेट्स सी, सेकेंड क्वेश्चन था हमारा, व्हाई अकॉर्डिंग टू जूलियट वुड ऑल द वर्ल्ड स्टॉप वर्शिपिंग द गैरिश सन। क्यों पूरी दुनिया गैरिश सन को वर्शिप करना, इबादत करना, पूजा करना छोड़ देगी, क्यों छोड़ देगी, ये दूसरा क्वेश्चन था। मतलब जूलियट ने रोमियो को कैसे ग्लोरीफाई किया, कैसे एडमायर किया, उसकी ब्यूटी के बारे में, उसकी अपीयरेंस के बारे में क्या बोला है, दैट हैज बीन आस्क्ड। ओके, तो दोनों के लिए एक ही हम आंसर प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं। हम लोगों को पूछा गया रोमियो ने कैसे जूलियट की ब्यूटी को ग्लोरीफाई किया या जूलियट ने रोमियो के बारे में क्या कहा, ये दोनों क्वेश्चन आए तो भी हम लोग कैसे आंसर करना है उसको देख लीजिए पहले। लेट्स सी द आंसर। द रोमियो एंड जूलियट इज एन एक्सट्रैक्ट। रोमियो और जूलियट क्या है बेटा, एक एक्सट्रैक्ट है। रोमियो जूलियट, ये जो पोएम का नाम है रोमियो एंड जूलियट, ये है क्या आखिर, एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट क्या होता है बेटा, टेकन पार्ट, एक बड़ा सा प्ले है, उस प्ले में से थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ है आपको, पूरा प्ले नहीं दिया आपको। एक्सट्रैक्ट बोल रहा है, इसलिए क्या बोल रहा है, एक्सट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, टेकन पार्ट। टेकन पार्ट एक हिस्सा जो लिया गया है। कहां से लिया गया है, फ्रॉम विलियम शेक्सपियर, जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है। कौन है राइटर, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। कौन सा, द ट्रेजेडी रोमियो एंड जूलियट। कौन सा है बेटा वो बुक, रोमियो जूलियट नाम का एक बड़ा सा प्ले है, उसके अंदर से यह हमारे को छोटा सा पार्ट निकाल के दिया, लेकिन टाइटल वही से रखा, रोमियो एंड जूलियट। ओके, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। फिर से देख लीजिए, द रोमियो एंड जूलियट इज एन एक्सट्रैक्ट। ये क्या है बेटा, एक एक्सट्रैक्ट पार्ट है, लिया गया एक हिस्सा है फ्रॉम विलियम शेक्सपियर ट्रेजेडी, जो विलियम शेक्सपियर ने ट्रेजेडी लिखी है, वो कौन सी ट्रेजेडी है, रोमियो एंड जूलियट। एक बड़ा सा प्ले है बेटा, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपको दिया हुआ है। यहां तक समझ में आ गया। आगे देख लीजिए, मॉन्टेग्यूज एंड कैपुलेट्स, ये दो फैमिलीज हैं यहाँ पे, मॉन्टेग्यूज एंड कैपुलेट्स, वे टू नोबल फैमिलीज। कैसे फैमिलीज हैं बेटा, टू नोबल फैमिलीज ऑफ वेरोना। कहाँ के हैं, वेरोना सिटी का नाम है, इटाली में सिचुएटेड है वेरोना। वहां के दो फैमिलीज हैं, फैमिलीज का नेम क्या है, मॉन्टेग्यूज एंड कैपुलेट्स। बेटा 1 मार्क में आपको ऐसे पूछ सकता है, व्हाट आर द टू नोबल फैमिलीज ऑफ वेरोना, क्या लिखोगे आंसर, मॉन्टेग्यूज एंड कैपुलेट्स। तो ये शॉर्ट आंसर्स में भी आपको हेल्प हो जाएगा, एक आंसर याद कर लेंगे समझ के, तो सारे शॉर्ट आंसर्स भी इसी में से आएंगे आपको। ओके, आप वो भी देखेंगे हम आगे, लेकिन पहले हम फर्स्ट एक फुल आंसर याद कर लेंगे, तो इससे हम सारे क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, आगे देख लीजिए बेटा, वेरोना हो गया वहां तक क्लियर। आगे, दे वेर राइवल्स, उन्हें क्या थे बेटा, राइवल्स थे। राइवल्स का मतलब क्या होता है, दुश्मन। क्या थे, क्या थे, कौन थे दुश्मन, मॉन्टेग्यूज एंड कैपुलेट्स, द फैमिलीज ऑफ रोमियो एंड जूलियट, दोनों क्या थे, राइवल्स। क्या थे बेटा, क्या थे, राइवल्स थे। एंड नोन फॉर देयर एनिमोसिटी, के वास्ते में जाने जाते थे मालूम, दुश्मनी के वास्ते। एनिमोसिटी का मीनिंग क्या होता है, दुश्मनी, एनिमिटी। वो किसके लिए जाने जाते थे, अपनी एनिमिटी के लिए जाने जाते थे। कौन, मॉन्टेग्यूज एंड कैपुलेट्स। दे यहां पे किसको बोला गया है, मॉन्टेग्यूज और कैपुलेट्स को बोला गया है। दे वर राइवल्स, उन्होंने राइवल्स थे, एंड नोन फॉर देयर एनिमोसिटी। दो, फिर भी, इसके बावजूद, दुश्मन होने के बावजूद क्या हुआ, रोमियो बिलोंग टू मॉन्टेग्यूज। रोमियो किस में बिलोंग करता था, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता था, मॉन्टेग्यूज। 1 मार्क में पूछा जाएगा, विच फैमिली रोमियो बिलोंग्स टू, मॉन्टेग्यूज। रोमियो बिलोंग्स
दो रोमियो बिलोंग्स टू मॉन्टेग्यूज, रोमियो मॉन्टेग्यूज को बिलोंग करने के बावजूद क्या हुआ, ही अटेंडेड द पार्टी, जो पार्टी का पिलेट ने ऑर्गेनाइज किया था उस पार्टी को अटेंड करता है। कौन? रोमियो। पार्टी होस्टेड बाय कैपुलेट्स, किसने होस्ट किया था पार्टी को? होस्ट करने वाले मतलब जो दावत देते हैं उनको होस्ट कहते हैं। आने वाले गेस्ट होते हैं। कौन होते हैं? गेस्ट। तो रोमियो कहां गया बेटा? दो रोमियो बिलोंग टू मॉन्टेग्यूज, मॉन्टेग्यूज फैमिली से बिलोंग करता था, इसके बावजूद उसने क्या किया? ही अटेंडेड द पार्टी होस्टेड बाय कैपुलेट, जो कैपुलेट्स ने होस्ट किया था उस पार्टी को वो अटेंड किया। कैसे किया? इन डिस्ग्यूज, ये वर्ड पूछा गया बेटा बहुत बारी एग्जाम में कि वो कैसे पार्टी को, हाउ रोमियो अटेंडेड द सपर, कैसे अटेंड किया? इन डिस्ग्यूज। कैसे अटेंड किया बेटा? डिस्ग्यूज का मतलब होता है अपना भेष बदल के, अपना अपीयरेंस। अब माजिद सर ऐसे दिखाई देते हैं तो माजिद सर ने क्या किया मालूम? फॉल्स मॉस्टैच लगा दिए, बियर्ड लगा दिया, कुछ और आंखों को चश्मा लगा दिया, टर्बन बांध लिया। कैन यू आइडेंटिफाई? नो। तो वैसे ही जूलियट ने, रोमियो ने क्या किया था बेटा? इन डिस्ग्यूज ही अटेंडेड द पार्टी, पार्टी को उसने अटेंड किया। देर इन द पार्टी ही सॉ, वहां पे देर, देर मतलब वहां, और एक देर आता है बेटा THEIR, देर, देर का मतलब होता है उनका। यहाँ पे ये देर नहीं आएगा ना, नहीं ये देर नहीं लिखेंगे, बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं इसको देर THEIR, ये कौन सा देर है? वहां, वहां। ये देर का मतलब होता है उनका, तो ये देर यहां पे नहीं लगेगा, जस्ट याद रखिए। ओके। देर इन द पार्टी ही सॉ, वो देखा। क्या देखा पार्टी में वो? जूलियट। क्या देखा? क्या देखा? कौन? रोमियो देखा। एंड वॉज फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड, फैसिनेटेड, फैसिनेटेड, अट्रैक्टेड बाय एन्चेंटिंग ब्यूटी। कैसी ब्यूटी थी जूलियट की मालूम? एन्चेंटिंग, एन्चेंटिंग, एन्चेंटिंग किसको बोला जाएगा? ये भी अट्रैक्टिव को ही बोलते हैं बेटा, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव ब्यूटी। जूलियट की ब्यूटी ना बहुत ही अट्रैक्टिव थी, उसको देख के वो अट्रैक्ट हो गया। किसको देख के? जूलियट की ब्यूटी को देख के। द पोएम एक्सप्रेसेस रोमियो, अब इस पोएम में हम लोगों को क्या एक्सप्रेस हो रहा है? द पोएम एक्सप्रेसेस रोमियो एंड जूलियट्स इंटेंस, क्या बेटा? इंटेंस, इंटेंस का मतलब होता है अंदरूनी, गहराई वाला, अंदर जो दिल के गहराई में होता है ना उसको कहते हैं इंटेंस, इंटेंस एंड पैशनेट लव, और पैशनेट जो जुनून भरा होता है उसको कहते हैं पैशनेट लव फॉर ईच अदर, ईच अदर को बोला है, दोनों का जो लव था उस लव को इस पोएम में एक्सप्रेस किया गया बेटा। तो ये तो था हमारा बेस, बेस वाला आंसर, फर्स्ट पैराग्राफ, इंट्रो वाला पैराग्राफ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे कि जूलियट ने रोमियो के बारे में क्या कहा है। ये तो दोनों आंसर के लिए हम लोगों को ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लगेगा बेटा। गॉट इट? आया समझ में? तो इसको याद करके आना है आपको कल, अच्छे से इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए। वर्ड्स का मीनिंग भी मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन्ड है, तो समझ जाएंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा। ओके, नाउ दिस इज द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द सेम आंसर, द कंटिन्यूएशन व्हाट इज मेंशन्ड। रोमियो कैसे ग्लोरीफाई कर रहा है जूलियट के चार्म को या जूलियट की ब्यूटी को, यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में हम लोगों ने डिस्क्राइब किया है। तो चलिए देखेंगे क्या क्या बोल रहा है रोमियो जूलियट के बारे में। रोमियो ग्लोरीफाइज, ग्लोरीफाई करना मतलब एडमायर करना, तारीफ करना, उसके बारे में बड़ा चढ़ा के बोलना, ग्लोरीफाई कर रहा है। रोमियो ग्लोरीफाइज द ब्यूटी ऑफ जूलियट। क्या कर रहा है रोमियो? ग्लोरीफाई कर रहा है, तारीफ कर रहा है किसकी? ब्यूटी ऑफ जूलियट, जूलियट की ब्यूटी की, ब्यूटी की तारीफ कर रहा है उसके। कैसे तारीफ कर रहा है देखिए, he finds that her beauty surpasses the brightness of burning torches। जो टॉर्चेस वहां पे जल रहे हैं, बर्निंग टॉर्चेस को उसकी ब्यूटी क्या कर रही है? सरपास कर रही है। बेटा हमारे पास दो चीजें हैं, एक है डायमंड, एक डायमंड रखा हुआ चमकेगा बहुत, मैंने दूसरी तरफ क्या रखा हुआ है?
मैंने एक साधारण सा एक गोल्ड का एक रिंग रखा हुआ है, तो विच वन शाइन्स एंड ब्राइटन्स, कौन सा ब्राइट दिखाई देगा आपको? डायमंड ऑब्वियसली, क्योंकि वो बहुत स्पार्क करता है, चमकता है। तो उसी तरह यहाँ पे जो टॉर्चेस हैं, देखो बर्निंग टॉर्चेस को इसकी ब्राइटनेस, जो जूलियट की ब्राइटनेस है, सरपास कर रही है बेटा, उसकी अच्छाई को दबा दे रही है, जो उसकी रोशनी है, रोशनी को सरपास कर दे। किसकी ब्यूटी? जूलियट की ब्यूटी किसको सरपास कर रही है? बर्निंग टॉर्चेस को। किसको? टॉर्चेस को सरपास कर रही है। किसकी ब्यूटी कर रही है बेटा? जूलियट की ब्यूटी। And she seems to hang upon the cheeks of night like a rich jewel in Ethiop's ear. जैसे इथोपिया के वीमेन होता है, इन इथोप्स ईयर, उनके इथोपिया के वीमेन मतलब बहुत ही डार्क कॉम्प्लेक्शन्ड लेडीज जो होती हैं, जो बहुत ही काले जो लेडीज होती हैं, उनके कान के अंदर अगर से डायमंड की रिंग हैंग हो गई तो कौन चमकेगी? वो लेडी चमकेगी, रिंग चमकेगी, ईयरिंग चमकेगी? क्या चमकेगी? ईयरिंग ऑब्वियसली। तो ये यहाँ पे कंपेयर किसको कर रहा है? जूलियट को, जो ईयरिंग ज्वेल जो रहती है उस ज्वेल से कंपेयर कर रहा है, और नाइट को इथोपिया के लेडीज से कंपेयर कर रहा है। देखिए और एक मर्तबा इस लाइन को, एंड शी सीम्स, वो ऐसे लग रही है, टू हैंग अपॉन, हैंग कर रही है, चीक ऑफ नाइट, नाइट की चीक में, मतलब डार्क कलर की चीक के ऊपर, लाइक ए रिच ज्वेल, एक बहुत ही महंगे से गहनी ज्वेलरी को हम अगर से हैंग करेंगे इथोपिया के ईयर के अंदर, तो जैसे लगेगी ना, वैसी पूरी रात में कौन दिख रही है? जूलियट दिखाई दे रही है। रोमियो वॉज फैसिनेटेड, रोमियो क्या हो गया? फैसिनेटेड हुआ, अट्रैक्ट हुआ। किससे अट्रैक्ट हुआ? बाय द रिच एंड रेयर ब्यूटी। कैसी ब्यूटी थी जूलियट की? रिच। रिच का मतलब क्या होता है? अमीर होता है, लेकिन यहाँ पे खूबसूरती में अमीर है। कौन? जूलियट। रिच एंड रेयर, रेयर मतलब जो कम दिखाई देती है ना, उसको कहते हैं रेयर। रेयर क्या बोलते हैं बेटा? रेयर। अब जैसे कि रेयर, हमारे पास IITN बहुत रेयर निकलता है, मेडिकल बहुत रेयर स्टूडेंट जाता है, बहुत कम, डॉक्टर बहुत कम बच्चे बनते हैं, तो रेयर रेफर्स टू कम। तो ऐसी खूबसूरती कम लोगों को मिली नहीं रहती है, सब जन खूबसूरत होते हैं पूरी दुनिया में? नहीं। रेयर ब्यूटी ऑफ जूलियट, जूलियट की खूबसूरती कैसी है? रेयर खूबसूरती है बेटा, सबको नहीं मिलती उतनी खूबसूरती, तो इसलिए क्या बोल रहा है? रिच एंड रेयर ब्यूटी ऑफ जूलियट। फैसिनेट वॉज से, कैसी ब्यूटी से? रिच और रेयर ब्यूटी से। ही कंपेयर्स हर विथ स्नोवी डव, उसको फिर से और एक बार कंपेयर कर रहा है बेटा, किससे कंपेयर कर रहा है? विथ स्नोवी डव अमॉन्ग द ट्रूपिंग क्रोज। और किसके साथ स्नोवी डव है यहाँ पे? ट्रूपिंग क्रोज, मतलब सारे लोगों को क्रोज बोला है बेटा, कौवे बोला है, काले कौवे दिख रहे हैं सब जन, और इन्हें कैसे दिख रही है? डव जैसी दिख रही है। डव कौन से कलर की होती है? व्हाइट कलर होती है। अंडरस्टूड? तो फिर से खूबसूरती को एडमायर कर रहा, ग्लोरीफाई कर रहा। तो पूरे पैराग्राफ में रोमियो ने जूलियट की तारीफ की है बेटा। तो फर्स्ट पैराग्राफ हम इसका लिखेंगे, नहीं अभी आगे देख लीजिए। ही एक्सप्रेसेस हिज डिजायर टू मीट एंड टच हर, उसके बाद वो चाहता है उसको मुलाकात करे, मीट करना चाहता है, मीट मतलब मिलना चाहता है, और टच करना चाहता है, हैंडशेक करना चाहता है उसके साथ, हेलो हाउ यू बोल के हाथ मिलाना चाहता है, टच करना चाहता है उसके हाथ को, टच हर सो दैट हिज रूड हैंड विल बिकम ब्लेस्ड। कैके वास्ते में टच करना चाह रहा है? अपने जो रूड हैंड है उनको ब्लेस्ड करने के वास्ते में, उनको धन्य करने के वास्ते में क्या करना चाहता है? वो टच करना चाहता है। किसको? जूलियट को। ही ओपनली एडमिट्स, और वो खुले आम एडमिट कर रहा है। क्या एडमिट कर रहा है? दैट ही हैड नेवर सीन सच ट्रू ब्यूटी, और ये एडमिट कर रहा है। Here we are having the third paragraph of the same answer. थर्ड पैराग्राफ में क्या बताया गया है ये देख लीजिए बेटा। जूलियट इज आल्सो इक्वली फैसिनेटेड। अब यहां से जूलियट ने क्या फील किया उसके बारे में बताया गया। जूलियट क्या फील कर रही थी रोमियो को लेकर? तो जूलियट ने क्या फील किया? देखो, जूलियट इज आल्सो इक्वली फैसिनेटेड। जूलियट भी ना इक्वली फैसिनेट हो गई थी। फैसिनेट मीन्स अट्रैक्टेड, पहले ही हम लोगों ने पढ़ा है वर्ड फैसिनेटेड। इक्वली अट्रैक्ट हुई थी किसको देख के? रोमियो को देख के। कौन अट्रैक्ट हुई थी? इक्वली, इक्वल मतलब बराबर, सेम फीलिंग थी दोनों की।
by the handsome and bright personality of Romeo. किससे अट्रैक्ट हो गई थी वो? हैंडसम. कैसा था रोमियो? हैंडसम एंड ब्राइट. बहुत ही ब्राइट था, बहुत ही ब्राइट था. कौन? रोमियो. तो इस हैंडसम और ब्राइट पर्सनालिटी को देख के क्या हो गई थी जूलियट भी? इक्वली फैसिनेट हो गई थी. क्या हो गई थी बेटा? इक्वली फैसिनेट हो गई थी. समझ में आ गया इतना लाइन? आगे देखिए. शी कंपेयर्स हिम. उसके बाद वो कंपेयर कर रही है. कंपेयर कर रही है. कंपेयर कैसे कर रही है? टू द डे इन नाइट. किससे कंपेयर कर रही है बेटा? टू द डे. डे से कंपेयर करिए. रात में सुबह जैसा है रोमियो. कैसा है? डे इन नाइट. एंड प्रेजेस. और उसके बाद फिर तारीफ करिए. क्या तारीफ? प्रेज करना मतलब तारीफ कर. प्रेजेस हिज अट्रैक्टिव डिस्पोजिशन. उसकी अट्रैक्टिव डिस्पोजिशन के बारे में बात कर रही है. शी कॉल्स हिज लव. हिज लव मतलब अपॉन हिज लव रोमियो. ही कॉल्स हिज लव, अपने लव को, अपने रोमियो को क्या बुला रही है उन्हें? ए न्यू, एक नई. वाइट स्नो. वाइट स्नो जो ऊपर से पड़ती है बर्फ, उसको क्या बोल रहे हैं? ही कॉल्स हिज लव. हिज लव यहां पे कौन है? रोमियो. रोमियो को क्या बोल रही है बेटा? ए न्यू वाइट स्नो. उन्हें कैसा दिख रहा? कहते हैं न्यू वाइट स्नो के जैसा दिख रहा. विच इज प्योर. जो प्योर होती है. स्नो बहुत प्योर होती है बेटा, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है. डायरेक्टली ऊपर से नीचे गिरती है तो इसलिए व्हाइट व्हाइट दिखाई देती है. कोई मिक्सचर नहीं है, कोई चीज उसके अंदर एडेड नहीं है. तो उस तरह, उसी तरह प्योर दिखाई दे रहा है उसको. एंड परफेक्ट. और परफेक्ट है उसके लिए, ये सोच रही है. कौन? जूलियट. ये सारी फीलिंग्स जूलियट की है बेटा रोमियो को लेके. आगे देख लीजिए. जूलियट वांट्स रोमियो टू बी कट. है, रोमियो को काटना चाहती है. वो कब काटना चाहती है? देखो. जूलियट वांट्स रोमियो टू बी कट इनटू लिटिल स्टार्स. छोटे छोटे स्टार्स में कट करो बोल रही है. कब? आफ्टर हर डेथ. उसकी मौत के बाद. किसकी मौत के बाद? जूलियट की मौत. हर यहाँ पे जूलियट है. जूलियट की मौत के बाद क्या करना? रोमियो को कट करना. स्मॉल 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 पीसेस करके स्टार्स बनाना. उसके स्टार्स बना के क्या करना है देखिए. So that he will make the face of heaven so fine. ताकि वो face of heaven को, face of heaven बोले तो यहाँ पे sky को बोला गया बेटा. ताकि वो जो face of heaven है, जो sky है, वो sky क्या हो जाए? फाइन दिखाई देने लगे. बेटा हम लोग भी घर में क्या करते हैं? अपने घर को डेकोरेट करने के लिए स्टार्स लगाते हैं. स्पेशली हमारे सीलिंग्स में हम लोग स्टार्स लगाते हैं. जब लाइट बंद हो जाती है तो वो चमकने लगता है, रेडियम के स्टार्स होते हैं. उसी तरह वो चाहती है कि जब जब जूलियट की मौत हो जाए, मौत होने के बाद रोमियो को छोटे छोटे स्टार्स करके कहां पे लगाने के लिए बोलिए? द फेस ऑफ हेवन मींस स्काई में लगा देना. सो ताकि फेस ऑफ हेवन क्या बने? और खूबसूरत बने. स्काई क्या बन जाए? और खूबसूरत बन जाए. एंड उसके बाद क्या होगा? एंड द एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया क्या करेगी? विल फॉल इन लव विथ नाइट. उसके बाद क्या करेगी? पूरी दुनिया लव करने लगेगी. किसको? नाइट को लव करेगी, सुबह को नहीं. फॉरगेटिंग द गैरिश सन. और किसको भूल जाएगी पूरी दुनिया? ये जो गैरिश सन है. गैरिश का मीनिंग क्या होता है? वेरी ब्राइट. जो ब्राइट सन है ना, इस ब्राइट सन को पूरी दुनिया क्या कर देगी? फॉरगेट कर देगी. क्योंकि रात में रोमियो मिलेगा जो खूबसूरत है, बहुत ही हैंडसम है. अंडरस्टूड? सो नोट इट डाउन. नोट कर लीजिए और इसको परफेक्ट करके आना है. और आप एग्जाम में 4 मार्क्स फिक्स, 1 मार्क 2 मार्क आपको इसमें से थोड़े थोड़े पार्ट लेके आंसर्स बनाने पड़ेंगे. जो कैसे करने हैं हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले. ओके, वो शॉर्ट आंसर्स कैसे कैसे. ओके, ये पहला ये आंसर्स को आप याद कर लेंगे. एक ही आंसर है, 2 क्वेश्चंस के लिए हम एक ही आंसर लिखने वाले हैं बेटा. 3 पैराग्राफ में था. नहीं सर, हम लोगों को नहीं इतना नहीं लिखना है. 3 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया. क्या पूछा गया? व्हाई अकॉर्डिंग टू जूलियट वुड ऑल द वर्ल्ड स्टॉप वर्शिपिंग द गैरिश सन. इतना ही पूछा गया. तो अब जूलियट के बारे में कुछ पूछ रहा है क्या? सॉरी, रोमियो के बारे में कुछ पूछ रहा है क्या? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है. तो तब क्या करेंगे हम? रोमियो ने जूलियट के बारे में क्या बोला था, सेकेंड पैराग्राफ में लिखा, उसको स्किप कर देना.
लिखना क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ। गॉट? 3 मार्क में। नहीं सर, हम लोगों को ऊपर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ लिखेंगे, 3 मार्क में। 4 मार्क में जब पूछेगा ना, 4 मार्क में जब पूछेगा एक क्वेश्चन, तो ये दोनों मिक्सअप पूछेगा, तो तीनों पैराग्राफ हम वहां पे पेस्ट कर देंगे। क्लियर? कैसे आंसर लिखना है? ओके। 2 मार्क में पूछा तो क्या पूछेगा, हाउ रोमियो ग्लोरीफाइज जूलियट्स ब्यूटी, तो हम क्या लिखेंगे तब, सिर्फ सेकंड पैराग्राफ लिखेंगे। 2 मार्क में पूछा ना बेटा, हम लोग पूरा लिखते क्यों बैठेंगे उसमें? कम टू द पॉइंट, डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। नहीं, 2 मार्क में ये पूछा गया, व्हाट आर द जूलियट्स फीलिंग्स फॉर रोमियो, इतना ही पूछा गया। 2 मार्क में पूछा जस्ट राइट दिस थर्ड पैराग्राफ, इसमें यही लिखा है ना, जूलियट ने रोमियो के बारे में क्या फील किया। 2 मार्क्स में पूछा जस्ट राइट दिस मच। गॉट इट? गॉट इट? तो बेटा 3 टाइप के क्वेश्चन के लिए हम एक ही आंसर प्रिपेयर करें ना। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में उसकी स्टडी करना। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू वेरी मच।